Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, the रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सना मीर, रोहान नदीम, शहजाद खान। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You're exclusively watching The Dugout on Maiko and Tamasha, and that too from the best capital in the world, Islamabad, Pakistan. And before I speak any other word, ladies and gentlemen, it is of utmost responsibility that I say that we as Pakistani nation are steadfast in our resolve and stand behind our armed forces. And ladies and gentlemen, for everybody who's out there, we certainly need a prayer for us and for all of those lives lost as well. And in addition to this, now I will actually allow myself to introduce the entire panel and my co-host first up. I happen to be Shahzad Hasan Khan, and with me, I'm really lucky that I've been joined by Ms. Roha Nadeem. Hello, Roha. Assalamu alaikum. How are you feeling today? Walaikum assalam. Thank you for that introduction and for those heartfelt words, Shahzad. I think we're all excited because now we're in the business end of the tournament, aren't we? Every game is now more and more important, and we're seeing जो टीम्स हमें नजर आ रहा था क्रूज करती हुई, उनकी क्रूज पे थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगी है, but we'll talk about that in a bit. Exactly. So without any further ado, ladies and gentlemen, let's introduce the wonderful panelists over here at the Dugout. First up, the speedster himself, Pakistan ki Aan, Shaan, Maan, whatever he's done for Pakistan, ladies and gentlemen, will always be remembered in the most of the golden words as well. Ladies and gentlemen, he is the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you feeling today? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Just alongside him, ladies and gentlemen, we're very lucky that we have been joined by somebody who's contributed quite a lot towards women cricket. She happens to be the former skipper for women ODIs and women T20 International, a gold medalist, you know, for somebody who's represented Pakistan in the World 11. She is Miss Sana Mir. Hello, Sana. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And ladies and gentlemen, it's very rare that you come across a wrong foot action. Not just that, happens to be the swing master himself. Looks like that there will be a lot of bouncers bounced his way today. He is Mr. Sohail Tanveer. Assalamu alaikum, Sohail bhai. How are you feeling today? Sir, thank you. Walaikum salam. Very good. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Let's start with the Rawalpindi Express because Rawalpindi is now the center of all the PSL action. And the home team has now returned. और हम कल यही बात कर रहे थे. And of course, before we go any further, हम पहले तो सना के 2 पॉइंट्स के लिए पे क्लैप कर ले. She got 2, right? Well done. और मैं नहीं जीते ये हम जीते All of us were voting for Islamabad United. Who did you think yesterday कि आज जीतेगा? Quota Gladi. Really? Simple. Smart. Yeah, because मैं पढ़ा होता है ना, देखा होता है, एनालिसिस किए होते हैं. It's very simple. चले मेरे पास तोता भी है 263 हो जो बता गया. देता है मुझे. Highest ever total in the history of PSL आज हो गया रावलपिंडी में 263. ऐसा क्या है पिंडी की विकेट में आज बहुत ट्रू विकेट नजर आया जैसे आज उन्होंने बैटिंग की. क्या कहेंगे आप इस रिकॉर्ड टोटल के लिए जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुली डिफेंड भी किया क्वेटा ने, 263 ऑन द बोर्ड. टॉस किसने जीता? टॉस इस्लामाबाद ने जीता. इस्लामाबाद ने फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने कहा जी आज गेंदबाजी करेंगे. पहले? हाँ जी. फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद रायली रोसो ने फैंटा लगाया, हसन नवाज ने फैंटा लगाया. फिर उन्होंने कोशिश ये की कि इनको क्लीनर्स तक छोड़ के आए और वो छोड़ के आए. और आई थिंक पहली बार हुआ है कि 200 हुए हैं एक इनिंग्स में. अच्छा, ये पूरी मैनेजमेंट में जो आइंस्टाइन है, मुझे बताओ वो कौन है? पता नहीं कौन सी डाटा ड्रिवन टीम है जिनको ये भी पता था कि पिंडी में अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं आखिरी 5 मैचेस में तो आप मैचेस जीते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये बात पता थी आज. अच्छा जी, तो आज शादाब आया ना? शादाब तो इंजर्ड है बॉस. और सलमान अली आगा? सलमान अली आगा losing reputation very quickly and rapidly. Yeah. Reason why? Because you know आज तकरीबन 95% of strength के साथ खेले थे. 2-3 changes किए उन्होंने, right? 3 changes, yes. 3 changes. There you go. So 3 changes के साथ I thought that you know कि ये finalist before the finalist खेल रहे हैं.
फाइनलिस्ट में से एक फाइनलिस्ट को ये बताना पड़ेगा कि हम आपकी फैंटी बहुत लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे बिकॉज वी आर द बेटर टीम नाउ. द बेटर टीम एक्चुअली स्कोर्ड वेरी हेवीली टुडे एंड शोड देम दैट यू नो हाउ वी गोइंग टू हैमर यू इन टाइम्स टू कम. Exactly. आई थिंक हसन नवाज आई थिंक इज अ पिक ऑफ ये सोहेल के साथ काम किया इसने, और सोहेल इज ह्यूज फैन ऑफ हसन नवाज, और आई थिंक वेरी टैलेंटेड. आई मीन जितना चांसलेस इनिंग्स खेलता जाएगा उतनी मेच्योरिटी नजर आना शुरू हो जाएगी. बट आई थिंक दिस गाय वाज अमेजिंग. राइल रूस इज अ सीजन कैंपेनर, सो वी ऑल नो दैट हाउ इज गोइंग टू हैमर यू. एंड वन मिनट दे गॉट द चांस कि यार कि हमें टॉस जीत के मैं डाल दिया, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आ जाओ, अब आप हम आपके स्लाइस थ्रू करते पहुंचा के हैं आते हैं। आराम से. बट मेहरबानी है फिन एलन की जो सना का फेवरेट है, Run out वो अभी तक चल नहीं रहा, रन आउट हो गया बॉस. तो अगर वो भी चल जाता है इस विकेट पे तो ये होना था 360. And there must have been a possibility for that as well. But very quickly, let's take a good look at the match summary as well as of what happened. I think Quetta was off to a very intentful start, and that's exactly what we did, Vishnu. And speaking about Quetta, I think we really need to speak about Saud Shakil's captaincy. But before we say that, I think Finn Allen, it was unfortunate, but other than that, Riley Rosso making sure that they're going to play all sorts of mind games with the bowlers, and he was top-notch on the crease with 104 of 46 with a strike rate of 226. And then there was Hassan Nawaz, 100 of 45, and that too completing a century on the last delivery of the last over. That's something which is phenomenal. We really need to appreciate. Couldn't really figure out what Islamabad was thinking. Imagine with the new ball, Imad Wasim comes in, and then there was Naseem. And then, long story short, ladies and gentlemen, it was complete dominance by Quetta Gladiator. That too winning by 109 runs. What a margin this is, especially अगर हम देखें T20 फॉर्मेट में. और हम before we go towards, of course, हम क्वेटा की बात तो अभी करेंगे ही in depth. But Sana, what if you look at that Islamabad bowling card and you see all the bowlers that they tried today and you see their economy rates, everybody went for 10 plus runs today. ऐसा लग रहा था कि एक टीम जिन्होंने अपनी बैटिंग डेप्थ को इतना प्रायोरिटाइज ओवर द इयर्स किया है, इस बार इस सीजन में स्पेशली उनकी बॉलिंग की समझ में नहीं आ रही, या मे बी इट्स बिकॉज दे हैव बीन अनफॉर्चुनेट with their injuries. आई थिंक इंजरीज ने थोड़ा सा डिस्टर्ब उनको कर दिया ओवरऑल माइंडसेट को, जो एक मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त कैरी कर रहा था. और इनकी बॉलिंग अगर आप देखें हेवीली डिपेंडेंट ऑन जेसन होल्डर नज़र आई थी शुरू के मैचेस में. ठीक है, ये रन्स ऑन द बोर्ड कर रहे थे, पर जेसन होल्डर सिंगल हैंडेडली मैचेस में बहुत बड़े बड़े उनके डिफरेंस ला रहे थे. एक वो भी मिसिंग हो गया, और शादाब उनके साथ मिडिल ओवर्स में शादाब की जो बॉलिंग थी जहाँ पर वो आके डॉट बॉल्स कर रहे थे और पार्टनरशिप्स तोड़ रहे थे, वो दोनों चीज़ें मिसिंग अब नज़र आ रही हैं. तो वो ऑब्वियसली उसका बाकी बॉलर्स उस तरह से उसको कम बैक नहीं कर सके. बट आई थिंक यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम क्वेटा ऑल्सो. क्वेटा की टीम पिछले 4-5 मैचेस से जिस तरह का मोमेंटम लेके आ रही है, और हम बार बार लीडरशिप की बात करते हैं, सऊद शकील की बात करते हैं, एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं हु वांट्स टू डिलीवर. सर विवियन रिचर्ड उनके साथ हैं, आपको वो एक पूरा एनवायरनमेंट नज़र आता है. तो दे लुक हंग्री, दे लुक के they want to have an impact And on, they've qualified for the playoffs for the first time since 2019. So you and you can see how much it they means become to the them. first team to qualify, and by the huge margin अब आप ये टॉप 2 में आराम two से में तो वो आ गए. फिनिश कर सकते हैं. और इस्लामाबाद को डिथ्रोन एक तरह से कर दिया एट द टॉप ऑफ द टेबल, और 100 रन के मार्जिन से अब फिर बहुत चांस खुल गया लाहौर का और बाकी टीम्स का. Exactly. And मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टनली विल फिगर आउट यू नो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. सबसे पहली जो बात करने वाली है वो ये है कि पिच रिपोर्ट बताती है कि यार इट्स अ बैटिंग पिच. यू नो मैं सोहेल भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सोहेल भाई, हाउ डू यू सी दैट फॉर सलमान अली अगर टॉस जीते हैं और खुद से कहते हैं कि भाई आप आए और यू नो टेक अस टू द क्लीनर्स. मतलब पिच रिपोर्ट बता रही है, यू नो डाटा ड्रिवन टीम है वहाँ पे. जिन 5 टीमों ने जो जीती हैं अभी लास्ट 5 गेम्स, वो पहले बल्लेबाजी करके जीती हैं. देखिए, सलमान अली आगा का अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा. ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11 या टॉस जीत के आपने या क्या करना है, तो ये सारी एज ए होल मैनेजमेंट करती है. मेनली कैप्टन एंड कोच डिसाइड करते हैं. तो ऑब्वियसली एज यू सेड के 5 मैचेस पिछले रिकॉर्ड दिखा रहा था कि वो जो टीम टॉस जीत के जिसने बैटिंग की है वो जीते हैं. तो आई नो व्हाट दे वर थिंकिंग, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइनअप जिस तरह की है कि दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम
नॉट कपल बल्कि 3-4 मैचेस से वो दे आर स्ट्रगलिंग। आज भी उनके जो पिछले मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग जिन्होंने की थी सलमान इरशाद, आई थिंक ही गॉट इंजर्ड। मतलब डेथ में अगर मैं कहूँ कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है तो वो सलमान इरशाद है। वो कैन नेल इज यॉर्कर्स, कैन बोल स्लो वन, स्लो बम्पर्स। तो उनका बाहर होना भी ऑब्वियसली इनके लिए एक सेटबैक था। तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको पता है कि 200 होना ही होना होता है, तो आप Looks dubious. whenever runs on the board ना, जैसा मर्जी पिच हो, आप चेज कर रहे होते हैं ना, तो runs on the board always difficult। आपको एक प्रेशर आता ही है कि 10-11 रन्स एज ए ओपनर जब आप जाते हो और 10-11 रन्स आपको पहले ओवर से फ्रॉम ओवर नंबर 1 till 20th आपको माइंड में होता है कि मैंने चेज करने हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली आई नो कि अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या लॉजिक थी उनके पीछे। बॉलिंग देखें क्वेटा की, आमिर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, Sambas were 2 for 2 in the first over. He got those 2 important breakthroughs in that first over. What is Amir doing this time around that you think is putting him above all of the other bowlers, especially in that initial phase of the game? Skills, using his brain, reading batsman। अगर आप देखें कि आज वो जब बॉलिंग करने आए पहले ओवर के बाद, he straight away went around the stump और उसको पता है कि सलमान अली आगा एंड वो जो शहजाद, he was trying to hit इनसाइड आउट, और उनका बल्ला बड़ा अच्छा खुलता है टुवर्ड्स पॉइंट एंड कवर। तो उन्होंने वो ही वाज टकिंग हिम इन स्विंग कर रहे थे अराउंड द स्टंप। तो दैट मीन्स कि वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एज ए इंडिविजुअल आप अपना प्लान बना के आते हैं, आप सोचते हैं कि किस बैटर के अगेंस्ट मैंने कैसी बॉलिंग करनी है। तो डिफरेंस यही है कि वो इज यूटिलाइजिंग हिज एक्सपीरियंस, उसके पास जो स्किल्स हैं, एंड देन मेनली अगेन आई विल से कि वो अपना ब्रेन बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। Exactly, but you know, overall, Islamabad United certainly looked baffled as well. You know, I'm going to move on to Shoaib bhai over here. Shoaib bhai, now imagine के 7 bowlers आज वो utilize करते हैं। Islamabad United के बारे में जो narrative build हुआ था वो ये हुआ था कि उनके पास हर occasion के लिए आमरी है। 12वें ओवर में वो छठा बॉलर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन अ T20 गेम। हाउ डू यू सी them strategizing against Quetta Gladiators? I think they are exhibiting their characters, basically. I think the one thing they have decoded, one thing is that, you know, कि हमें अपनी bowling कैसे ठीक करनी है। ये वाइट टीम है जो मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में आके ना अपने बॉलिंग फ़हीम अशरफ के आने से इन्हें अपनी बॉलिंग को बिल्कुल सेटल डाउन कर लिया। इब्रार पहले ही था, वसीम जूनियर और ये अपना लड़का आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से इस्लामाबाद आपसे नहीं पूछा मैं सो स्टक है आमिर सर, sorry। मैं नहीं पहले मुझे फिर जान दिया जी जरूर। यार। मैं ये सोच रहा था यार कि फ़हीम अशरफ के आने से सारे मुझे देख रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं। दूसरा वसीम जूनियर के आने से 2 चेंजेस की ये सना और सोहेल लगे हुए थे कि यार ये जो पार्टनरशिप है मिसिंग है बीच में। वो जब पूरी हुई उनकी बॉलिंग कमाल होगी। और इधर जाते हैं जब हम इस तरह, तो जैसे सना ने पॉइंट आउट किया ना कि यार अगर आप सारी बॉलिंग रिलाई जेसन होल्डर पे कर रहे हो और उधर आमिर पे कर रहे हो, बिल्कुल, तो फर्क तो साफ जाहिर है ना यार। ट्रू, एग्जैक्टली दैट, तो यू नो, एग्जैक्टली। बट वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द गाय इज नॉट परस्यूड। नसीम शाह वर्सेस चले, आमिर कर लेते हैं। आप किसको पिक करेंगे? सारे से पूछ लो। आमिर को पिक करेंगे। अमाद वसीम, आई मीन ही इज ग्रेट, यू नो। जेसन होल्डर कंपेयर टू फ़हीम अशरफ, अब आप देख लें। इधर तो जेसन होल्डर बनता है लेकिन अनफॉर्चुनेट था आज। हाँ, अनफॉर्चुनेट। सलमान आगा इज चिपिंग इन, आई मीन शहजाद इज चिपिंग इन। आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक इट लुक्स a far better team in the bowling units when it comes to Quetta. Is this a valid excuse कह लें या reason justification कि आपके players को niggles हो रहे हैं, injuries हो रहे हैं? क्योंकि आज सलमान ने फिर से ये बात की है कि हम मजबूर हैं चेंजेस करने पे, and it's because हम अनफॉर्चुनेट रहे हैं। Is that a mindset that Islamabad have right now? देखिए, अब जो वो चेंजेस कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें इंजरीज का दखल है। शुरू में 1-2 मैचेस में अननेसेसरी भी चेंज हुआ, जिस वक्त हमने देखा कि बिला वजह रेस्ट दिया गया। बट अब जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक हो गया है, जो शोएब भाई भी बॉलिंग की बात करते हैं कि शादाब एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, ठीक है वो खेलते एज एन ऑलराउंडर हैं, पर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑपरेट कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो वो एक स्पिनर इनसे चला गया। अब आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा उनको फिल करना चाह रहे हैं, और नवाज जो है, नवाज खेल रहे हैं बट उतनी ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की नहीं है अभी तक। इमाद आप एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास है। तो आई थिंक अब जो चेंजेस हो रही हैं वो डेफिनेटली इंजरीज की वजह से हो रही हैं, पर उससे पहले ये स्टार्ट कर चुके थे चेंजेस करना। वही ना, 6 चेंजेस हुए, उसको आपको ओन अप करना पड़ेगा जहाँ से इनकी विनिंग स्ट्रीक टूटी है वहाँ पर।
और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेटा ऑब्वियसली वो एक मोमेंटम में आ गए हैं, उन्होंने जब चेंजेस आपके किए। एमवीपी ने लगता है रात का हमारा परसों का शो देखा एंड ही गॉट दैट एक्स्ट्रा मोटिवेशन। नहीं, मैं आपको बताऊं, दैट ही नीडेड। मैं- राइली रूसो, लेट्स टेक अ लुक एट हिज इनिंग्स टुडे। आई थिंक रैली रूसो की अगर पिछले आप मैच को भी देखें ना, ही लुक्ड सो हंग्री, वो रन आउट हुए एंड ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल सो वेल, और उसके बाद वो इतने डिसअपॉइंटेड हुए आउट होने के बाद, तो वहाँ से मुझे नज़र आया कि ही अगले कुछ मैचेस में, एक दो मैचेस में से किसी में भी ही विल परफॉर्म, बिकॉज इतनी ज़्यादा हंगर उनमें नज़र आ रही And that's exactly, what he did today. Imagine, I think if it was Riley Russo against Tamir, it would have been a wonderful contest. Played with the brains of the ballers, made sure that they couldn't really figure out what I'm going to do next. Picking up the line too early, making sure that he's going to play his strokes, and I think that's what actually contributed towards their win today massively. And the intent that we speak about, Riley Russo today, that's where the hunger actually finished, and he went on. Unfortunate that his catch was being caught at 104. Otherwise, Riley Russo would have been at 150 tonight. आप इनकी सारी बाउंड्रीज अगर आज देखें ना, तो एज अ बॉलर आपको समझ नहीं आएगी आप इनको बॉलिंग कहाँ करें। बैकफुट Exactly. पे ये खेल रहे हैं, लैप शॉट्स, रिवर्स स्वीप्स ये खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, सबको ऑपरेट, तो जब व्हेन ही इज परफॉर्मिंग, व्हेन ही इज मेकिंग रन्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिम। वाकई, और ये विकेट भी सुहेल बिल्कुल आइडियल उनको मिली थी आज, और उसके बाद अब दो प्लेयर्स ने आज 100 किए हैं क्वेटा के इस लाइनअप में। हसन नवाज की भी हम आपसे बात करेंगे। रायली रूसो तो हम जानते ही हैं, जिस तरह वो वेटरन हैं PSL में, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स इन द टूर्नामेंट। बट टॉक अबाउट हसन नवाज, हाउ इम्पोर्टेंट इज समबडी लाइक हिम, एक इमर्जिंग प्लेयर को अब हम देख रहे हैं डूइंग द रन्स। यू नो व्हाट, सबसे अच्छी चीज़ जो लग रही है कि आप देखें कि फॉर पाकिस्तान ही बैटेड एज ए ओपनर, for Quetta he started as a opener, but then they sent him at number 6, then number 4, number 5. एक इमर्जिंग प्लेयर है ना, तो आप सोचें कि एक प्लेयर कितना वो मेंटली स्ट्रांग है इसी उम्र में, कि उसको डिफरेंट नंबर्स पे बैटिंग कराई गई, और उसने छठे नंबर पे भी मैच जितवाया। पिछला मैच जो जितवाया, अकेले खड़े होकर मैच जितवा दिया। आज वाला मैच यस टोन सेट की रायली रोसो ने, बट स्टिल क्रेडिट टू हिम कि चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए, आई नो हिम, मैं पहले प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसका एक पिछले 3-4 साल से फॉलो किया हुआ है। बच्चा था तो मैंने इसको देखना शुरू किया। ही इज ऑलवेज बैट एट नंबर 1, ये ओपनर है, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करता है, तो फिर ही गोज ऑन। बट यहाँ एक चैलेंज था उसके लिए, एंड ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, और आई थिंक ग्रेट साइन। आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम। येस, ही गॉट फ्यू फेलियर्स फॉर पाकिस्तान, बट आई थिंक कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें तो ये पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सर्व कर सकता है। बट थोड़ा सा मेंटली आपको बच्चे के साथ काम करना होता है, एंड देन यू हैव टू बेयर, वो जो हमेशा कहता हूँ ना कि बेयर सम फेलियर्स। आपने जब एक टैलेंट देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अगर कुछ फेलियर्स आते भी हैं तो बी पेशेंस। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन करना जरूरी भी है, और उसकी वजह ये है कि अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ही इज रेडी टू ओपन एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, बट फॉर इमर्जिंग टैलेंट लाइक हसन, एक और सवाल है जो मेरे दिल में मैं पूछना भी चाहता हूँ, वो ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इमर्जिंग कैटेगरी में आपने खिलाड़ी खिला दिया, जब वो इमर्जिंग कैटेगरी से एग्जिट करता है, उसके बाद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में नजर आना बंद हो जाता है, इसका क्या हल होना चाहिए? बताएं जी, आपने तो काम किया हो। बताएं। मैं तो आई थिंक हमने आज एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये डिस्कशन की थी, और मतलब एक हल तो ये कि ऑब्वियसली आप जैसे बाकी कैटेगरीज को ख़त्म करते हैं करें, बट मेरे नज़दीक क्योंकि आपका एक ब्रांड रहा है PSL का और इमर्जिंग को, जनरली जब भी इस तरह का कोई कोटा सिस्टम आप लगाते हैं, कोई पॉलिसी लाते हैं, वो किसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए होता है। एक टाइम था जब पाकिस्तान में नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था, तब ये पॉलिसी आई, तो आप इसको फ़ौरन हटाएं मत, बट मे बी इन द कमिंग सीज़न आप ये कर सकते हैं कि आप इमर्जिंग को हर मैच ना भी अगर खिलाना हो, आप 10 में से 5 मैच खिलाना हर फ्रेंचाइज के लिए हो कि वो कर सके, ताकि आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए देखने की कि उस पॉलिसी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम अक्सर बिल्कुल ऑपोजिट्स पे चले जाते हैं, या तो डिपार्टमेंट्स हैं तो या तो नहीं है, या तो ये पॉलिसी है या तो नहीं है। सो मे बी जस्ट फॉर 1 सीजन और 2 सीजन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप उसको एक मिडिल वे में ला के देखें कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आ रहा है लीग के ऊपर या नेगेटिवली, और प्लेयर्स के ऊपर वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। सो मे बी दैट कैन बी अ वे और फॉरवर्ड। चूंकि ये फ्यूचर ऑफ दी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि शोएब भाई और सोहेल भाई दोनों इसमें अपनी राय जरूर दें। सर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इमर्जिंग प्लेयर्स जब इमर्जिंग होते हैं तो खेल रहे होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो जितने प्लेयर्स जिन्होंने अपना नाम बनाया है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ना
इफ़ यू शाइन nobody आपको रूल आउट कोई भी नहीं करता. यू स्टार्ट फ्रॉम शाहीन, ही केम एज एमर्जिंग, यू नेम शादाब. ये सब प्लेयर्स वो हैं जो एज एमर्जिंग प्लेयर आए. जब आप परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, आप इमर्जिंग से ऊपर जब जाते हैं भी एज ए लोकल नॉर्मल प्लेयर, तो भी आप पिक होते हैं. जो जैसे मैंने मिसालें दी, बट बहुत सारे यस यू राइट के बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं एज एमर्जिंग खेलते हैं, बट सम हाउ दे कुडंट परफॉर्म. जिस तरीके की देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट जब आप टीम बना रहे होते हैं ना, तो ये एक बड़ी क्रूअल सी जगह है. यहाँ पे आप वो सिम्पथीज़ और वो टैलेंट और पाकिस्तान का वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं. यू बेसिकली एज ए फ्रेंचाइज यू लुकिंग टू बिल्ड योर टीम, नॉट फॉर पाकिस्तान. येस इट हेल्प्स डेफिनेटली, पाकिस्तानी प्लेयर ही खेल रहे होते हैं उसमें, बट उनका मोटिव अपना यही होता है कि मैंने अपनी टीम बनानी है, राइट. तो जैसे मैंने कहा कि वही प्लेयर सीन से गायब होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाते जिस तरीके से ये मैंने शादाब का जिक्र किया. शादाब आज देखें कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे वो भी है, राइट. शाहीन को आप देख लें, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. तो जो परफॉर्म करते हैं दे स्टेज इन द सीन. क्या? जी आपकी भी राय चाहिए शिव भाई. नहीं, मैं रॉक दर देख रहा था, कितने गौर से सुन रही थी. मैं अभी कुछ एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा हुई हूँ. हाँ जी, मैं बताइए. क्यों हुई हूँ वो बाद में बताऊंगी, पहले आप बताएं. अच्छा जी, मैं बताता हूँ यार. असल में देखिए, इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी इसलिए रखी है कि यार चलो एक तो सस्ते मिल जाते हैं, अच्छा टैलेंट को लाना भी जरूरी है पीसीबी की तरफ से. ठीक है. वो ले अपॉर्चुनिटी दे दी. अब ये 6 लड़के हैं. अब इन 6 लड़कों को एटीट्यूड चेक करना है, जर्नी चेक करनी है, इनकी विल पावर चेक करनी है, इनके पाथवेज चेक करनी है, इनकी अर्ज चेक करनी है. तुम 6 तो 19-20 के साथ आप गट्टे खड़े हो गए. अब किसने स्टार बनना है? अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है. 6 फास्ट बॉलर्स हैं. अब 6 में से किसका दिल है कि मैंने सुपरस्टार बनना है? ये है प्रॉब्लम. अब यहाँ पे अब तुझे मेंटल हेल्थ के साथ तुझे दोस्त सबसे पहले बेहतर करने हैं. मैं बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुमने पेड़ों के साथ ही रहना है और तुमने ग्रोथ को मना करना है और माले के स्टार बनना है, तो तू कभी पाकिस्तान का स्टार नहीं बनेगा. अगर तुमने पाकिस्तान के स्टार खाल से बनना है और ग्लोबल स्टार नहीं बनना, तो फिर छोड़ दे वो मेहनत. ठीक है. बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो मैंने ज़ाया होते देखे हैं, उनकी दौड़ इतनी तक थी कि बस यहाँ तक, सोच बस वो पाकिस्तान से खेलना. वो पाकिस्तान तो खेलना, लेकिन पाकिस्तान कैसे याद रखेगा? अब now within the teammates that you understand, there is a Shahid Afridi, there is a Wasim Akram, there is a Inzamam, there is Waqar, there is everybody. But you have to understand that यार कि आपने अपनी नीश मार्केट कैसे क्रिएट करनी, आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होगा. हसन नवाज इज गोइंग आउट टू टेल, लिसन यार साहबजादा इज ग्रेट, बट hey look at me, I am also great. You know, मेरी शॉट्स जो है ना वो जाती हैं तकरीबन 20 यार्ड पीछे. इसमें तुम ये ना समझो यार मैं छक्के लंबे मारता हूँ, इसमें ये समझो कि मैं अपना गुस्सा भी दिखा रहा हूँ, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि यार आई एम फार बेटर. बट इसका 1 साल के अंदर डाइसेक्ट होके इसका काट पीट के पास चल जाएगा. हसन, व्हाट आर यू अप टू? एग्जैक्टली. That's it. What is he up to? बिल्कुल. That is going to determine his future, and once he does do that, and if he stay focused, because there's a lot of nonsense around with you. Yeah. To और पता चल जाएगा कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं. और मेरा ख्याल है कि Simple. And I बहुत ही think क्योंकि confident हम moment. हसन नवाज को ऑलरेडी देख चुके हैं इंटरनेशनल में भी, he has 100 to his name, but he still has to make that mark consistently. वो कैसे नेक्स्ट perform टाइम आए ना, करेंगे. अच्छी बोली में आए ना, आके खरीदवाए ना अपने आप. बिल्कुल बिल्कुल. देखें, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट जाना है. हमने जाना है Confidence ब्रेक की बात की करनी है तरफ. बच्चों की ब्रेक जी. में असल में ना मैंने ना कुछ खाना ऑर्डर किया था, वो डिलीवर हुआ है, एंड द राइडर इज कॉलिंग मी एंड आई हैव टू पे हिम थ्रू जैज कैश. सो आई एम गोना डू दैट. एंड यू नो व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक, इफ यू रीलोड इनफ टाइम्स थ्रू जैज कैश, do you know what can happen? Yeah, you can actually win an electric car. So I'll leave you on that note. Go and reload. आप भी करें, मैं भी अपना problem solve करती हूँ. यहाँ पर एक break लेते हैं. But when we come back, there's so much more coming ahead. Please keep watching us on the तो मुझे भी dugout. लगी है. I'm not We sharing believe in with you. sharing, right? अच्छा. I don't know. हम friends बन गए. Keep watching the dugout exclusively on Tamasha and Michael. All
right, people, welcome back. Thank you so much for streaming us live exclusively on Maiko and Tamasha. And certainly it's time now for the most fun segment, which is the Dugout Expert or Ask the Expert. You can ask your question, hashtag Dugout Expert. First question is with Roha. Roha, let's kick off. चलें, अभी हमने सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया है आस्क द एक्सपर्ट. मेक श्योर आप हमें #डगआउट एक्सपर्ट्स से सवाल भेजें. आज हमारा पहला सवाल है फॉर रावलपिंडी एक्सप्रेस. आज हम आपके थोड़े से मिस एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे. यू हैव हैड अ फ्यू ऑन फील्ड टसल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लिटिल हियर एंड देयर, ये तो हमें पता है. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि वो ऑन फील्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फील्ड कन्फ्रंट करने आपको आ गया कोई प्लेयर? यूसुफ दम बोला, सो मैं करता हूँ, ऐड तू ले जाता है. तो फिर हमारी लड़ाई होगी. लड़ाई में ये हो रहा था, यूसुफ नीचे और मेरी 2 उंगलियां उसके मुंह के. मैं कहा मेरे हाथ छोड़ यूसी, चक ना मार. तो मैं, मेरी बॉलिंग फिंगर्स है ना, तो ये लड़ाई हो रही है. तो यूसी बिट में मैं चक्की मार दी. मैं कि ये लड़ाई लड़ने का वो तरीका है. ऐड पे मैं मजाक कर रहा हूँ. वैसे हमेशा कहता था, कहता यार ये शाहिद अफरीदी और तुमने क्या ड्रामा मचाया, 1000 रन मैं करता हूँ, वो आगे ये करता, तुम ये करते हो, ऐड ले जाते सारे. मैंने कहा यार वो ऐड के लिए बंदे को अच्छा. और कोई फॉरेन प्लेयर कभी आके आपको जरा बात आगे बढ़ी? स्कॉट स्टारिस. ओवर व्हाट? आई गॉट हिट बिकॉज मैं बैटिंग कर रहा था विदाउट माई सेफ गार्ड और दानिश की गुगली लग गई मुझे. एंड व्हेन आई वेंट आउट फॉर डिनर ही हिट मी बैक देयर और हमारी लड़ाई होगी. और देन आई वेंट बैक टू हॉस्पिटल. मैं 2 वनडे मिस कर गया बिकॉज मेरी इग्नोरेंस की वजह से. और मैं बगैर प्रोटेक्शन के खेल ही जा रहा हूँ, सुई पे मारी जा रहा हूँ. फाइनली आई गॉट हिट. स्कॉट स्टारिस ने मजाक बना लिया. अब मैं मैच नहीं खेल पा रहा. अब मैनेजमेंट कहा रेस्ट करना है, रेस्ट. तो नेक्स्ट थिंग, द बेस्ट थिंग आई डिड, आई वाज जेट स्कीइंग एंड आई वाज डूइंग द बंजी जंपिंग इन क्वींसटाउन. शुक्र है इनके टाइम में मैनेजर नहीं थी, वरना इतनी लड़ाई होती मेरी और शोएब भाई की. वो सारा प्रेस पीछे. मैं अज्जू की नई शादी हुई, अज्जू और रहबा की शादी हुई नई. तो उनका जो हनीमून पीरियड था उनके साथ मैं शामिल हो गया. रीजन भाई, उन्होंने कहा भाई हमारा हनीमून, तू तो अपने कमरे में जा. मैंने कहा यार मैं तो इंजर्ड, तो मैं तो कहीं तो जाना है. तो टीम चली जाती थी तो मैं आपा के साथ होता था. सो आई थिंक दैट्स माय स्टोरी. बंजी जंपिंग इन क्वींसटाउन साउंड्स फ्रॉम टू द चॉपर एंड आई एम इमेजिन आई एम हर्ट. और मेरा मैनेजर कहता है भाई तूने ऐसे ही मरना तो बता दे हमें, क्यों हमें मजाक में डाला हुआ. रोज फाइन करते थे, मैं रोज दे देता था. Anyways, this is me. Exactly. I think एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं जरा सुहेल भाई की तरफ जाना चाहता हूँ. सुहेल भाई, व्हाट इज योर, अच्छा जो सवाल है वो ये है, व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ रियलाइजिंग दैट आई वुड वांट टू प्ले क्रिकेट इन माय लाइफ? Okay. My father took me to school for admission. ये स्टोरी मैंने सुनाई हुई है और ये मेरी पहली मेमोरी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी. सही. स्कूल में लेके गए तो सरकारी स्कूल होते थे, वो नीचे बैठना है आपने, और वो अब्बू बैठ के मेरे टीचर के साथ कर रहे थे एडमिशन के वो फॉर्म शॉर्म फिल. तो आई रिमेंबर दैट डे कि मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कोई बच्चा बैठा हुआ था जो भी था. सो एक ही कॉपी थी मेरे पास, उसमें से हमने एक पेपर फाड़ा, उसको रोल किया ना, वो मैंने उसको बच्चे को दिया एंड आस्क्ड हिम टू बॉल मी एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. सो दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी प्लेइंग क्रिकेट. आई वाज so passionate from that age, honestly. मेरे नाना अब्बू अल्लाह उनको की रहमत बच्चा करे. याद है या नहीं, नाम मुझे कहते थे यार कि तुम सोते हो ना तो सोते में भी तुम्हारे हाथ पांव यूं हिल रहे होते हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे होते हो, क्रिकेट खेल रहे होते हो. तो I was that passionate. Wow, I think that's great. That's why it took him so far. स्कूल कौन सा था सुहेल भाई? स्कूल था जी मरीड हसन स्कूल. ये झंडा चीची से थोड़ा सा आगे जाएं तो मरीड हसन स्टाफ, यू मस्ट पिंडी बॉयज. आपको क्यों बता रहा हूँ. यस, मरीड हसन स्कूल. That's a beautiful memory. Thank you for sharing that with all of us. अब एक और सवाल है जी, और ये तीनों के लिए है सवाल. Good memory. All three of you can answer this question because there will be different versions of this. पहले I'm starting with Shoaib Akhtar. Oh, not again.
फिर मैं आऊँगी कप्तान पे और फिर मैं आऊँगी सेम क्वेश्चन के साथ. यू आर बॉलिंग द लास्ट ओवर एंड यू हैव टू डिफेंड 6 रन्स. ठीक है, मैच है, आखिरी ओवर है, लेकिन सामने ऐसा कौन सा बैटर है जो आप देखना चाहेंगे कि यार ये बैटर हो तो 6 रन डिफेंड हो जाएंगे? तो यार बैटर जो मर्जी हो, कीपर मेरी मर्जी का हो. अच्छा, कौन है आपकी मर्जी का कीपर, ये बता दो. दो तो कैच ना छोड़े. कौन है आपकी मर्जी का कीपर? या बता दे कौन ना दो हो. ही चॉइसेस थी उस टाइम. बैट्समैन मैं वो डिफेंड कर लूं, पीछे कौन कैच पकड़ेगा? कौन ना हो. अच्छा, 3 नाम वो है, तो मैं हमें दे पता देता है कि हूँ. कौन 3 ना नाम है, मैं दे नहीं देता नहीं हूँ. छोड़ दो. नहीं, आप बताएं कौन हो या कौन तुम ना हो. बताती हो. मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सवाल पूछने के पैसे मिलते हैं. एक्सपर्ट तुम होस्ट हो, मैं मैं एक्सपर्ट. एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं- यार मेरे को होस्ट को तंग ना करें यार. please, यार, मैं भाई. करूंगा. नहीं यार, please, अच्छा यार. चले, आप बता देना कि बैटर का भी बैट्समैन बता अगर दो. हो कोई और मेरे सामने वो ना हो, डेमिन मार्टिन हो. सच्ची स्टोरी है. मैं अब लीड्स में वर्ल्ड कप का हो रहा था मैच, तो डेमिन मार्टिन थोड़ा सा अपने आप को रूम देता है, तो इनसाइड आउट बहुत अच्छी खेलता है. तो मैं तो न्यूट्रलाइज हो गया वहीं पे. अगर मैं ऐसे लाऊं, लेंथ बॉल लाऊं, तो वो आराम से मारेगा सामने या इधर मारेगा. मैं कहा वसीम भाई आप संभालें. उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, ऐसे घबराया ना करो. वो मैंने पहले ये, फिर दूसरा वो ये, तीसरा ये, हो गया डंडा. डेविड मार्टिन से मगा क्या मसला है? मैं कहा ओके, कोई मसला नहीं. डेविड मार्टिन नो मेरे से. चले, कैप्टन सना मीर, now you're the captain, you're calling the shots. Same scenario, but who would be the bowler in men's cricket that you would give the ball to defend those 6 runs in the last over? सवाल ये था. नहीं, वो तो उनके लिए. अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं कहा वो मैं वो कैप्टन है, गलत- तो एज अ आज का मैं कैप्टन पूरा वो जवाब दे किसको रहा हूँ, देंगी या वो खुद कराएंगे? आई थिंक अगर डेथ बॉलिंग में 6 रन है तो जब पीक पे ऑब्वियसली मेरे पास दोनों ही ज़बरदस्त बॉलर्स बैठे हैं, शोएब भाई, सुहेल भाई दोनों, और उसके अलावा वकार यूनुस. आई थिंक ये 3 में से कोई भी मैं pick one. Oh, no getting away this time. हाँ, आई थिंक विकी भाई को जाऊंगी यॉर्कर्स के लिए. Yes. और 6 रन, क्योंकि 6 रन के लिए यू हैव टू नेल दैट यॉर्कर. Yeah. सो आई थिंक 100%, विकी भाई. yeah. Well, now you have the same scenario. You are Okay. bowling the last over. Okay. Who would you want के सामने ना हो बैटिंग AB में? डिविलियर्स. AB डिविलियर्स. 6 रन. आई थिंक ऑलवेज मुझे मतलब ही इज़ द वन जिसको बॉल करते हुए मुझे हमेशा डिफिकल्टीज हुई, स्पेशली एट द डेथ, क्योंकि नॉर्मली उनकी 6 रन कितनी बॉल में करवाता? हाँ जी 2-1 लै लैनी है सर, क्योंकि चौके मारता सी, छिक्के नहीं मारता मैंने. पीछे खेलते हैं. वो किधर इधर मारता? जितने फील्डर में नहीं किधर मारता? वो हर तरफ मारता है. मैं एक स्टोरी विजुअलाइज करना किधर मारता? वो तो रिवर्स तो मतलब स्विच हिट भी मार जहाँ पे फील्डर नहीं होना था वो दोनों तरफ लैप भी मार सकता था. इफ यू बॉल हिम यॉर्कर तो वो दोनों तरफ लैप मार मैंने लेता नोटिस था. किया है कॉपिंग में. या He वो copied, आपकी I वो noticed. वो वो जब आपकी आप- वो चांद पे इनिंग जो थी ना वो उसने देखी. जब वो 46 वाली- आप रजाक भाई को नीचे करके ऊपर गए थे आप ना. उर्दू ना बोला प्लीज. लो जी. अरे जी, अगला सवाल बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग ख्याल है. है, मैं तो सर बता जी. रहा हूँ, बहुत ग्रेटेस्ट बैट्समैन की कॉपी करते हैं. अच्छा जी, अगला not सवाल kidding. बहुत. शेब भाई ये आई एम नॉट किडिंग, दिस इज सीरियस कंटेंट, सीरियसली मैं बता रहा किस हूँ. किस ने किया ये तो बताएं. जावेद मियांदाद, सचिन तेंदुलकर, इंजमामुल हक, आई थिंक दे कॉपीड मी. आपसे पहले ही आगे हाँ. कॉपी कर गए. पहले आगे अच्छा, ये जो सवाल है ना, मैं ये देखना चाहता हूँ शेब भाई इसका कैसे जवाब देंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. शेब भाई, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट उड़ने लगी है, अच्छा. सारी टीम बिजनेस क्लास में बैठी है. हाँ. आप आते हैं, इमरान नजीर को कहते हैं चल पीछे चल. नहीं, वो हैपेंड बी इन अ बिजनेस क्लास. मैं कहा जूनियर तुम क्या कर रहे हो बिजनेस क्लास में, पीछे जाओ, लॉन्ग फ्लाइट है, मुझे तैयारी करनी. बट एनीवेज मेरा ये तरीका होता था कि मैं बाय द वे आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली. बच्चों की ज़िंदगी आसान होगी. मैं ट्रैक सूट पहनता था ठीक है. और वो मुझे कहते थे तुम टाई कोट ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट. मैं कहा सर मर जाएंगे, ये पैंटी ठीक करते रहेंगे सही रात. Yeah. 16 घंटे की फ्लाइट है. नो, तो मैं चेंज कर लेता था. मैं अपने पैसे देता था, अपग्रेड कराता था बिजनेस क्लास में, वहीं पे बैठ के. और हमारे टाइम बिजनेस क्लास वैसे भी शुरू हो गई जी. थी. हमारे एक एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. और शुक्र है बहुत सारे लड़के बच गए, क्योंकि मेरे रूममेट बनते तो बहुत मुसीबत होती. मैं सोता नहीं रात को, और जो चीज़ें पड़ी तोड़ देता था. लेकिन मसला ये था कि अकेला कमरे मिलना शुरू हो गए थे. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको इसलिए पीछे भेजा कि आप रिलैक्स कर सके. तो वो दुबई तक बेचारे इकोनॉमी में आए. आई थिंक या ऑस्ट्रेलिया से दुबई तक इकॉनमी में है. Oh God, that's a That's long shame of them flight. for all लेकिन of us. मैं दो पूछने भी गया हूँ, तुम ठीक हो ना? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन स्टिफ हो.
कोई मसले की बात नहीं है। ये लो जी। मुझे ना इससे एक मूवी की लाइन याद आ रही है। हाँ जी, क्या लाइन है जी? नहीं, मैं ब्रेक में मुझे बताऊंगी। अच्छा नहीं लगा। चलो जी। मूवी की लाइन याद आई, मैं ब्रेक में बताऊंगी। क्या ये तो जाती है ना। अच्छा, चलिए सना टुवर्ड्स यू कमिंग नाउ। तो बाकी किसने बताया? इमरान नजीर ने वो भी हम He's उम्रा करने गए sourceful. थे, उम्रे पे बताया। है आपको देखे I'm sorry, वहाँ तक याद किया होगा। देखो मेरी कितनी सर्विसेज है मुझे, मैं कितना जोर लगाता हूँ। ट्रू। सना, आपके लिए क्वेश्चन आया है जी कि यू हैव फॉट अ लॉट ऑफ बैटल्स ऑन द फील्ड, बट व्हाट हैज बीन द हार्डेस्ट बैटल यू फॉट ऑफ द फील्ड? हार्डेस्ट आई थिंक ये जो क्रिएट दैट स्पेस फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स, आई थिंक चाहे आप मीडिया में हो, चाहे आप लीडरशिप में हो, फॉर पीपल टू टेक वुमेन सीरियसली, ये अंडरस्टैंड करना कि हाउ यू लुक अ सर्टन वे डजंट हैव टू डू विद इट, इट्स अबाउट आपकी जो नॉलेज है गेम की, जो आप एज ए क्रिकेटर सोच सकते हैं, या एज ए स्पोर्ट्स एथलीट आप जो समझ सकते हैं गेम को। आई थिंक वो उसको एक पोजीशन देना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था अपनी ज़िंदगी में, ये बात को एक तरह से प्रूफ करना, और इसको एक्सेप्ट कराने में थोड़ा टाइम भी लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम लोगों की परफॉर्मेंसेस ऐसी थी और ऐसे टाइम पर हुई कि वो आहिस्ता स्लोली एक परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा रजिस्टर होना शुरू हो गया। बट इट टुक अ लॉन्ग वाइल टू चेंज दैट परसेप्शन कि अच्छा जी एशिया से हैं, लड़कियां हैं, ये क्या कर सकती हैं स्पोर्ट्स में या फील्ड में, या इनका एक ख़ास रोल है सोसाइटी के अंदर। तो आई थिंक जब आप किसी भी इंसान को, वो लड़की हो या लड़का हो, जब आप उसको वो स्पेस देते हैं ब्रीथ करने के लिए, ड्रीम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो दे कैन डू वंडर्स। सो आई थिंक वो एक ऑन गोइंग चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में हर एक डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट तरीके से आपके सामने कभी ज़रूर ऐसा आती कोई मौका आया व्हेन यू ऑलमोस्ट थॉट ऑफ गिविंग अप कि यार ये बहुत दफ़ा। बैटल बहुत लंबी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है? बहुत दफ़ा आया। इसमें जब क्रिकेट खेल रही थी उस वक्त भी बहुत दफ़ा सोचा, लेकिन उस वक्त टीममेट्स की वजह से मैं रुक गई, बिकॉज बहुत से ऐसे टीममेट्स थे जो मेजॉरिटी ऐसे थे जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, और उनका जो पैशन था, जो उनका स्पिरिट था, वो बहुत ज़्यादा था मेरे से। और हम, क्योंकि मैं एक प्रोटेक्टेड माहौल में बड़ी थी, तो कोई छोटी सी भी मुश्किल आती थी तो गुस्सा चढ़ के तैयार हो जाती थी छोड़ने के लिए। बट फिर जब मैं उनको देखती थी और उनकी फ़ाइट को देखती थी और ये सोचती थी कि अगर मैं भी चली गई और हमारी आवाज़ कम हो गई तो कैसे ये कॉज आगे चलेगा। तो आई थिंक मुझे मेजॉरिटी जो मोटिवेशन थी मुझे अपने टीममेट से मिली थी वहाँ That's पर। very selfless of और जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रही हैं। और अब अभी भी जब मैं मतलब छोड़ने के बाद भी जब मैं ऐसी ख़वातीन को देखती हूँ जो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकी किसी भी वजह से, या जिनको वो सपोर्ट घर से नहीं मिली, तो उनके लिए भी एक और एक्स्ट्रा दिल करता है कि आपको जब एक मौका अल्लाह ने दिया तो आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि बाकियों के लिए रास्ते खुलें और बाकियों के लोगों के जहन बदलें कि आप कोई भी काम ज़िंदगी में करें अगर सिंसेरिटी से करें तो उसमें खुद ब खुद बरकत भी आती है और इज़्ज़त भी मिलती है। And thank you so much for contributing to Pakistan women's cricket as well. You truly Thank deserve a you. big round of applause over here as well. Thank you so much. I think there's another question as well. जब हमारी ये इस तरह के सफ़रनामे होते हैं, जब हम किसी जर्नी पे चलते हैं, तो एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो कि आपके साथ होता है हर वक्त। उसको आपके सबसे ज़्यादा राज भी पता होते हैं और वो सबसे ज़्यादा आपके लिए एज अ पिलर, एज अ सपोर्ट बिहेव भी करता है। सो लेट्स गिव देम अ रिच ट्रिब्यूट एज वेल। सोहेल भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू। वो ऐसा कौन सा दोस्त है जो थ्रू थिक एंड थिन रहा और सबसे ज़्यादा राज भी आपके जानता है? अच्छा, कुछ शोज पहले शहजाद ने सवाल किया था कि कौन सा दोस्त खाना नहीं खिलाता। उसमें मेरे दोस्त ने तो आई बताया। थिंक किसी दोस्त ने माइंड किया, तो अब हम कवर अप भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, आप भी अपना भी बताएंगे फिर उसके बाद। देखिए, दिस वन पर्सन हु रियली हेल्प मी, जो आज मैं हूँ, जो आपने कहा ना कि व्हेन आई वाज नथिंग, वो गली मोहल्ले का क्रिकेटर था, वहाँ से जो उस टाइम पे जिन लोगों ने आपका साथ दिया ना, आई थिंक वो मैटर करते हैं। और उनको अगर हम अप्रिशिएट ना करें या यहाँ पे उनके बारे में जिक्र ना करें तो उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नॉर्मली आपको स्क्रीन्स पे नज़र नहीं आते। लाइक जब हम फर्स्ट क्लास वगैरह में आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में तो बहुत सारे लोग आपको ऑन करना शुरू कर देते हैं, बट असल लोग वो होते हैं जो उस टाइम पे आपके पीछे खड़े होते हैं व्हेन यू वर नथिंग। तो यस, देयर इज़ अ गाय, आई मीन वही झंडा, जब मैं झंडा चीची रहता था, जिस पहले क्लब में मैं खेला, आशिक हुसैन उनका नाम है, एंड उन्होंने जो उनकी कैपेसिटी थी, अब ज़ाहिर हर इंसान की कैपेसिटी एक लिमिट है, उसमें रह के वट एवर
हाँ जी, you know him, definitely you know आशिक him. हुसैन। आशिक हुसैन। तो he is the one के जिन्होंने मेरे उस बिगिनिंग में he really helped me out क्या कि बात जिस भी कैपेसिटी में मुझे हेल्प चाहिए थी, whether it was guiding, एक ट्रैक है, किस ट्रैक पे चल के जाना है, या जो भी मुझे क्रिकेट की जो नीड्स हैं उस टाइम पे वो पूरी करना। ज़रा फ्रॉम अ very humble background, you know, we all came from a humble background. So I Exactly. think we should appreciate them by saying words for them, ताकि ये बाकी भी जो लोग, बाकी जितने प्लेयर हैं, शुएब भाई के साथ भी डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, हर प्लेयर के साथ कोई ना कोई होता है, तो उनको अप्रिशिएट जरूर और करना सुहेल भाई आप जैसे बताते हैं ना, आपको जप्पी देने का सर मुझे लगता है सुहेल भाई नीड्स अ जप्पी। जादू की जी जब आप सना, दिल से बोलते हैं ना, तो जप्पी देने का दिल करता है ना। जी सना। मेरे लिए एक नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस वक्त हमने स्टार्ट की थी वुमेंस क्रिकेट तो उस वक्त ऑब्वियसली स्टेक्स वर वेरी लो, कोई इतना आप पे बिलीव नहीं करता था। तो मैं 3 अपने शुरू के टीममेट्स का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, जिसमें बतूल फातिमा जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिलेक्टर हैं, कानता जलील फास्ट बॉलर, वो अब ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, और नैन आबदी वो अब US में होती है। ये तीनों अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे करियर के लिए। बतूल तो बल्कि शुरू में एक टैलेंट हंट में थी, उसने मुझे पिक किया था जब मैंने PWCCA में पहली दफ़ा ट्रायल्स दिए थे, वो मुझसे पहले। नैन मेरे साथ कोई 3-4 साल एज ए वाइस कैप्टन रही, और एक टाइम ऐसा आया कि उसको कप्तानी भी ऑफ़र हुई मेरे पीठ पीछे, और उसने उसको रिफ्यूज़ किया और आके मुझे बताया कि ये चल रहा है टीम के अंदर। तो वो जो एक आपको पता चलता है कि यार ये सच्चा दोस्त आपका जो है वो उस तरह से। और कानता भी, जितना भी मेरा क्रिकेटिंग करियर अप्स एंड डाउन्स आए, मुश्किल टाइम आया, वो एक ऐसी दोस्त है मेरी कि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए शी विल बी बाय माई साइड। सो आई थिंक ये क्रिकेट फ्रेटर्निटी में 3 दोस्त ऐसे थे जिनको, जो आज तक ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं, और इनकी वजह से बहुत सी अचीवमेंट्स जो थी मेरी ऑन ग्राउंड, वो इन तीनों की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट। क्या बात है, क्या बात है जी। प्रोडिजी। आई थिंक जो सबसे अच्छा दोस्त था ना मेरा, वो मैं खुद का था। ओके। और जितनी फेवर्स मैंने अपने आप को दिए किसी को नहीं। How do you manage to do this? क्या आ जाओ यार। You see, you should not think about this one thought. You should never come across that you're up against the whole world. It's you up against yourself. Or just go out there, enjoy every bit of it. Be restless, be harmless, be cool about it, and embrace. You know, embracing के लिए आपको इतना बड़ा दिल चाहिए, गुर्दा। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो और अपने थॉट प्रोसेस के अंदर डूबना शुरू हो जाते हो और हिचकियाँ खाना शुरू कर देते हो, देन यू आर अ वीक मैन। लेकिन उसी के लिए तो दोस्त दरकार होते हैं। मैं दोस्तों के लिए पैदा हुआ था। हाय। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी मॉरल सपोर्ट हूँ। मुझे किसी ने किसी, अब बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, अगर तूने रीबूट होना है ना, मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें बिल्कुल रिफ्रेश करके ना, तो रीबूट करके तो छोड़ दूंगा दुनिया में, जा अब लड़, अब वापस आ। लेकिन याद रख, इस सारे प्रोसेस में 2 चीज़ें मत भूलना, एक फॉरगिवनेस एंड दूसरा बिटरनेस। ये कभी नहीं होना। क्रिकेट में हम सारों ने, ये जितने अचीवर्स बैठे हैं, देखो रोहा की अपनी अचीवमेंट है, तुम्हारी अपनी है, इसकी अपनी जर्नी है, इसकी अपनी जर्नी है, सब आए, ये सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं। कोई भी आम बंदा यहाँ नहीं बैठा, गारंटेड। तुम्हारी स्ट्रगल शायद उस लेवल की ना हो, लेकिन हैं। सुहेल की उस लेवल की ना हो, लेकिन हैं। सना की सेम स्ट्रगल, बट हैं। देखिए यहाँ पे जो पहुंचा नहीं लाइटों के आगे बैठने के लिए, वो आम बंदा है ही नहीं। थैंक यू। और आम बंदे के साथ आम चीज़ हो ही नहीं सकती। तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो तुम आम आदमी और तुम्हारे साथ आम चीज़ हो? आई थिंक मैं इस पॉइंट पे ना very रोहा एक चीज जरूर profound. बोलना बस रोना नहीं, चाहूंगा, तुम कॉन्फिडेंस की वजह से, मेहरबानी। कॉन्फिडेंस की वजह से बोलना चाहूंगा। वो ये है कि यू नो आई वाज ऑलवेज इनटू कार्स, सुनने वाली बड़ी मजेदार गाने। आई वाज इनटू कार्स, यू नो, प्रॉपर्टी का बड़ा बूम चल रहा था, एंड मैं शुएब भाई के घर भी चले जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे बोला, यार तुझे कभी कोई पैसों की मदद चाहिए हो, कुछ चाहिए हो ना, तो जस्ट कम टू मी। एंड बिलीव यू मी, एवरीबडी इज वाचिंग आउट देयर। ये जो कॉन्फिडेंस है, बेशक शायद हो सकता है कि कभी ना लेने पड़े हो, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला उस वक्त पे सिर्फ इनके कहने से, आई थिंक हेल्प मी क्वाइट लॉट एज वेल। एंड आई थिंक दैट वो जो रीबूट की बात करें, दैट रीबूट एक्चुअली हेल्प मी टू पुश माई लिमिट्स एंड गो बियॉन्ड वेयर आई थिंक आई वाज फियरफुल। आई थिंक दैट्स इट। सो अ बिग रिच ट्रिब्यूट टू यू टू एज वेल। जी रोहा, आपकी बारी। जी, वंडरफुली आंसर्ड। वो आई थिंक अब दोस्त, आपका दोस्त। मेरे दोस्त, ये आई थिंक एक लंबा सेगमेंट हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स मेरी वो है, वो लिस्ट है।
बताओ, I think it's your day today. I think my father has always been my. He was the one जिनको देख के मैंने cricket देखना शुरू किया क्योंकि मेरे भाई तो What है age? नहीं. I was 11, 12 I think around about 12, 13 उस age group में मैं थी. So because he would have cricket on, on the telly at home all the time, तो मैं उनको देख के फिर I would sit with him and that's the bond we developed. And because मेरे भाई तो नहीं है तो हम उस तरह से लड़कियों का घर है कोई शौक नहीं था cricket का. But he was the one who cheered me on, and initially when I would get a project, a gig, an audition, anything, and I would get very nervous and I would say, Baba, मैं ये नहीं कर सकती. तो he said a line that अभी तक it guides me in what I do. He said कि तुम नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है. And I feel like I still go back to what he used to say, and it's very profound and it's beautiful. But what is your first memory of cricket? Like, ये admire किससे ज़्यादा करते थे मेरे अलावा? हमारे daddy? I think I've shared this on a lot of platforms. I think it was the 2007 T20 World Cup where I really started following cricket, and I was like, wait, ये भी हो सकता है, ये भी possibility है, 6 sixes in an over, and then of course that final between Pakistan and India, and us losing that final, coming so close, and seeing how much that meant to my father and to everybody else जो cricket follow करते हैं. I was like, I want to follow this sport. I want more of that adrenaline, So I think that was my first profound memory and also first cricket heartbreak. Exactly. बड़ा उसके बाद रिकवरी में हमें टाइम लगा, but और जो आपके वालिद साहब ने बात की उससे आपको ऑब्वियसली बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया. इसी तरह इनके सब दोस्तों ने इनको कॉन्फिडेंस दिया. शेब भाई को जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर मैंने दिया क्योंकि स्कैल्प स्ट्रांग हो. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू परफॉर्म वंडरफुली वेल. वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. विल बी राइट बैक. यू वाचिंग द डग आउट. All right, people, welcome back. Thank you so much for streaming us live exclusively on Maiko and Tamasha. You're certainly watching the dugout. And time now to discuss about today's game as well, which is going to be in between Karachi Kings and Peshawar Zalmi. But first things first, let's pick the winner. जी, कहाँ से शुरू करें? हाँ, मुझे ना देखो. सुहेल भाई से शुरू करते हैं. चलो, सुहेल भाई. मुझे ना देखो. It's going to be Karachi Kings versus Peshawar Zalmi. Certainly number 2 on points table will come across the number 5, and Peshawar Zalmi is pretty much in the race. They certainly need to kind of win this game to kind of make sure that they reach towards or qualify for the playoffs. So, Suhail bhai, what do you have to say? और ये भी बताएं कि कल पिच का आपको क्या लगता है कि बिहेवियर कैसा होगा? Will it be similar to what we saw today because it was a pure batting heaven? देखिए, पिच का तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है जब तक आप उसको देखना ले, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो हमने देखे हैं मैचेस इस PSL में या ओवरऑल जो पिंडी की पिच बिहेव करती है तो वो हमेशा से बैटिंग पैराडाइज रही है. यहाँ पे हमेशा रन्स आपको देखने को मिलते हैं. सो कल भी लग तो यही रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है. दोनों टीमें तगड़ी हैं. दोनों के पास अब आप कहें कि दोनों ने राइट टाइम पे पीक किया है. ज़ल्मी थोड़ा सा पीछे है, ज़ाहिर है कराची किंग इज़ ऑन सेकंड, बट ज़ल्मी भी अगर आप देखें कि जो पिछला मैच खासकर जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है तो वो इट शोज़ के दे आर बैक. उनका बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है, उनकी बैटिंग, दे हैव सो मैनी मैच विनर्स. वेयर एज अगर आप कराची की भी बात करेंगे तो उनके पास भी दे हैव सो मैनी मैच विनर्स. उनके पास स्टार्ट फ्रॉम द स्किपर, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. रन्स उतने ज़्यादा नहीं किए बट वो जो एनर्जी, जो माइंडसेट लेके आए कराची किंग में, दैट रियली मैटर्स. डेविड वार्नर एंड देन हसन अली की जो फॉर्म लगी हुई है, जेम्स विंस की 3 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं. सो इट्स प्रीटी मच इवन. मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होने जा रहा है. एंड इफ़ यू आस्क मी टू पिक अ विनर तो आई विल गो विद कराची किंग. Karachi Kings for Sohail Tanveer, Sanamir. या टफ पिक टुमारो क्योंकि दोनों टीम्स बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही हैं. कराची के पास भी टॉप हेवी बैटिंग है. पेशावर अब आई थिंक बहुत से बॉक्सेस टिक कर रही है. मुझे उनकी टीम अब इस तरह से बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कि मां सदाकत का इंक्लूजन बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रहा है वहाँ पर. और
अब बैटिंग ऑर्डर भी उनका बेहतर सेट होता नज़र आ रहा है। तो आई थिंक आई विल गो विद पेशावर दिस टाइम। Right. Let's see if the winning streak continues. आज तो 2 पॉइंट लिए हैं। सेम अरे दिमाग लगाने की जरूरत क्या? सेम थोड़ा सा जो Okay. सुन रहे हैं आजा उनके चलो लिए। यार कराची किंग्स यार चलो डेविड वार्नर There you एनिस्टन एमवीपी बाद में बताऊंगा वापस आओ पहले MVP पे आते हैं शहजाद खान। मेरी पहले आपकी बारी है। आप बताएं पहले। I think I'm going to go with Sana. I'm going to go with Sana Peshawar Zalmi. I want Peshawar Zalmi to win and I want them to put up a good show. नहीं, you said Peshawar Zalmi Yeah. and you have said Karachi Karachi Kings. Yeah, and Sheba said Karachi Karachi Kings as Kings. well. So Yeah. 2 Oh, पेशावर, 2 okay, कराची। okay. Yeah. So 2 अब for तक। Karachi, 2 for. Yours What about you? yours is a Yeah. तुम deciding कर लो vote. ना इस्लामाबाद भी कर लो ना Let's go. Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi. Okay, I feel like they will have to give their Yeah. 150% because they really need those points much more than of course Karachi. Karachi अभी फिलहाल अच्छे फॉर्म में ज़रूर नज़र आ रहे हैं but I think अगर ऐसी conditions हुई जैसी आज थी बाबर, साइम, मोहम्मद हारिस, I mean मिच ओवन नीचे ही, ऊपर नहीं। मिच ओवन मिच ओवन अभी ऊपर आ तो रहे हैं बट अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा सुहेल हमें कि वो ओपनर हैं या वो किधर खेल रहे हैं। वो क्या लगता है? जो मुझे तो मैंने पहला डिसमिसल उनका एज ए ओपनर देखा था तो मुझे नहीं लगा कि ही इज़ अ ओपनिंग बैट्समैन बट वो एरन उस दिन आई थी तो उन्होंने हमें बताया कि ही ओपन्स फॉर हिज होम टीम इन होबार्ट आई गेस तो ऑब्वियसली वो हैं बट अभी तक जो 2 डिसमिसल मैंने उनके देखे हैं एज ए ओपनर तो मुझे स्विंग होते बॉल पे जहाँ पे भी बॉल स्विंग हुआ है वो स्ट्रगल किया है गो के उन्होंने बॉलिंग 4 खेली हैं बट वो उनकी टेक्निक मुझे थोड़ी लगी कि ओपनर वाली नहीं है बट इफ़ ही ओपन्स एंड ही स्कोर्ड रन्स मेरे ख्याल में वो बता रही थी कि सेंचुरियाँ वगैरह भी की हुई हैं तो डेफिनेटली उनमें टैलेंट होगा तो इसीलिए वो करते हैं सो लेट्स सी हाउ ही गोज़ चलें पेशावर ज़ल्मी is I think the dominant choice Yeah. here. Let's move on now to picking the MVP. आज हम स्टार्ट करेंगे शोएब अख्तर से। MVP कौन है पहले कराची आपके? किंग्स के जेम्स स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट चॉइस। होमवर्क किया हो ना ज्यादा हो गया आज। फौरन ही बता दिया। हाँ Chill एग्जैक्टली with- यार तू एक्साइटेड होकर जफियां डाल दी और कुर्सी गलत ना सेलेक्ट कर ली नहीं अभी जिस एक्सप्रेशन से आपने कहा उसका जफी नहीं बनती। हाँ प्लीज गलत कुर्सी पे ना आ जाएंगी तेरा पता कोई नहीं जी अच्छा सुहेल भाई से पूछते हैं। सुहेल भाई कराची किंग्स आपने बोला तो आपके लिए कौन है? यार टिम सैफर्ड को 2 दफ़ा पिक कर लिया आई होप एक दफ़ा तो करेगा तो इस दफ़ा फिर टिम सैफर्ड आई गो विद हिम के पाईकारी लेवल बड़ी आपकी वैसे कंसिस्टेंटली आप उसे बैक कर रहे हैं, ठीक है। ना इज अ मैच अब तो बनता है। इज अ मैच विनर ऑब्वियसली अभी मतलब स्टार्ट लिए हैं लंबी बारी नहीं खेली अभी तक उन्होंने बट व्हेन ही गेट्स गोइंग तो आपको पता है ही विन गेम सिंगल हैंडली You got it. सना मेरा मैं क्या एक बार ही करेगा यार लॉट ऑफ इनसाइड जोक आपका साइम अयूब जा रहा है ना मेरा साइम अयूब की तरफ भी जा रहा है पर माज सदाकत की तरफ भी जा रहा है चलें आप मजे के- माज रख लें। चलो माज। मैं माज माज। आई एम Maaz गोइंग विद साइम देन। कहा नहीं माज सदाकत ओके क्या नाहिद राणा खेलेगा कल? पता नहीं अगर खेलेगा तो आई $1 थिंक क्वेश्चन हाँ ना $1 क्वेश्चन अगर नाहिद राणा खेलेगा तो आई थिंक आई एम गोना गो विद यार ये अगर ये मगर अलाउड अब्बास नहीं का है। Maybe पूरा ये हमने 3 दफा ट्राई किया है कंडीशनल। तो फिर मेरा पॉइंट कैंसिल चलो हो ठीक जाएगा। है, यू गोइंग विद नाहिद। नाहिद राणा नहीं yes. कुछ और पिक कर लो ना नो बट वो मुझे लग रहा है खेलेगा। जाने दें क्योंकि वो अभी नजर भी आया नेट्स में बॉलिंग करते हुए भी तो लेट्स मैं तो आपके ख्याल में पहले नेट नहीं कर रहा था वो पहले भी कर रहा होगा लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी किस लिए नेट करता हुआ नजर आया अहमद दानियाल ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच यार, लिया वो बहुत थोड़ी बात अच्छी- बैठेगा बट आई थिंक आई एम गिविंग यू नहीं अहमद दानियाल तो हो गया ना। अच्छा हो गया रोहा हो गया ना ठीक है हाँ ठीक है हो गया नाहिद राणा हो नहीं गया। नहीं क्या पता एक्चुअली खेल लें कल। अच्छा चले जी And चले, I think these Right. were the MVPs. Saim Ayub is my pick for the MVPs. Let's hope जो last match में उनकी फॉर्म हमने फाइनली देखी है वो अब पिंडी के विकेट पे कंटिन्यू हो। डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं but I'm not able to hear him. If you're able to hear Yeah, him. because what he's trying to say is that you know there's a change in points table and it's because of the fact जैसे हमने पहले mention भी किया कि सांबर यूनाइटेड आज बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी जिसकी वजह से कराची किंग्स अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं 10 कभी points हैं फर्स्ट पर जी। और कभी अर्श अभी पर। तो अर्श पर ही है कराची 10 पॉइंट्स के साथ
और इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके साथ 10 पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, 9 पॉइंट्स के साथ लाहौर कलंदर्स हैं जी 4th स्पॉट पे, एंड पेशावर ज़ल्मी हु विल बी इन एक्शन टुमारो दे आर एट नंबर 5 with 8 points to Exactly, their look at name. that. But look at that net run rate right now, नेगेटिव में है उनका, एंड ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो भी ऑलरेडी आउट हैं, लेकिन हम अगर ऊपर देखें ये 4th और 5th स्पॉट जो है इस वक्त इनका भी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इट विल बी वर्चुअली अ क्वार्टर आप सोचें फाइनल. लाहौर कल किसके लिए चेयर कर रहा होगा। और ये चारों टीमें ओपन है, सही अभी बात कोई है. भी पहुंच सकता है, कोई भी क्वालिफाई लाहौर करेगा किसके इनमें लिए से. चेयर लाहौर आई थिंक कराची को ही कहेगा ये क्या दिन आ गए हैं कि लाहौर वाले कराची को कल सपोर्ट करेंगे. और देखे ना एक मैच कैसे डिफरेंस क्रिएट कर देता है वो आज. अभी तो ये इमाद वसीम को दुआ दें कि उन्होंने बीच में आके 40-50 रन कर दिए, वरना जिस तरीके से वो अंधी फ्लाइंग कोचों की तरह खेल रहे थे मुझे लग रहा था 70 पे आउट हो जाएंगे वो. आई मीन यार सीरियसली थोड़ा सा तो आप गेम को डीप लेके जाते हैं ना. भाई इतना अच्छा लगा आपने लाइट बेंटर की है ना, क्या बात है, मजा आया यार, थैंक यू सो मच. ये मिसबाह उल हक बोलते होते थे, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा किसके लिए बोलते थे, बट या लेकिन जो देखिए इस पीएसएल के 10वें एडिशन में सबसे अच्छी बात है कि अभी हम डिसाइसिव नहीं हो सकते. जो बीच की 4 टीमें, रोहा, एनी टीम कैन मेक इट टू द playoffs as well. Islamabad can, agar unfortunately Islamabad nahi ab acha khelte hain, to they can come down as well. Exactly. I think that's the most interesting bit over here in this Pakistan Super League's 10th edition. And after tomorrow's game, every team will have played 9 games, so there will be just those one each game left, or points table will become even more interesting. But what we do know for sure so far is that Quetta are through and they will be ending up in that top 2 spot, given कि आज का मैच जीतने के बाद वो 13 points के साथ they are pretty much secured. Yeah. Those are the standings right now, and this is, I think this was our show, gentlemen and lady, Sana Mir. Ladies. Lady and Yes. myself included. I think यहाँ पे wrap up करते हैं. Karachi Kings, Peshawar Zalmi tomorrow, and of course the action continues in Rawalpindi. आप सबका बहुत शुक्रिया for joining us on the dugout, and thank you Shehzad for joining me once again. आप सबका बहुत शुक्रिया for watching. This was our episode for tonight, and we will be back tomorrow post match with your daily PSL hangout. अपना बहुत ख्याल रखें. Keep watching the dugout exclusively on Tamasha and Maiko.